हेलो एवरीवन। टुडे वी स्टडी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टडी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जब भी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करेंगे तो देयर आर टू एक्सिस। तो इफ वी ड्रॉ as like this line, this is known as the y axis, and if we draw as like this type line, this is known as the x axis. This is x axis is a horizontal line. Okay, a horizontal line is labeled x or x dash. X and x dash is known as the x-axis. A vertical line labeled y and y dash is known as y-axis. So, and here is a point. This point, suppose that we have labeled this point O, and this O point is known as the origin. This is origin. Origin point is this. It will label by O. So therefore, if we start O to this direction, O to in x direction by x-axis, so it will the positive x value. So this have the positive x value, and if we move from the above 0, that is origin point, to above at the y-axis, so this will known as the positive y-axis. And if you go to the below from the O, so it will known as the negative y-axis. And if we go to the left side from the origin on the y x-axis, and it is known as the negative x. So here are the positive x and here are the negative x. So this will the positive y-axis, this will negative y-axis. So this chord and this total is known as the one chord. So in this chord, x will positive and y will positive, and this is a second chord, and this chord is x negative and y will positive, and in this chord here are x is negative and y is also negative, and in this chord here is x is positive but y is negative. So if we see carefully the opposite, that means if this direction is the positive, so this will the totally negative, and here are the minus plus means negative positive, so here will the positive negative. So we can say that these are the four chord, and in this chord it is a very important to know about chord in a coordinate geometry. So hope you have understand what is x-axis and what is y-axis. So clearly we can say that horizontal line is x-axis. From origin to right side are the positive x-axis value, means we can say this horizontal line is known as x-axis. If here is origin, so origin to right side, so here is right side, so this right side have the positive value, and the left side have the negative value. So origin to, we move left from the origin, so this have the negative value, so it is known as the negative. Now if we draw a vertical line, this is known as what? Y-axis. This is y-axis. And if we have here the origin point, so above from the origin are known as the positive y-axis, and below from the origin are known as the negative y-axis. If we make both x and y-axis together, so it will form as like this. As like this is a x-axis and this is a y-axis. So this is a x-axis, and now this is y-axis, and this point is known as origin point. And here is a, if here is x, so here is x dash. We can write it like this type x. And if here is y, so here will y dash. And if you put this is a y1, so here will the y2. If you put here x1, so here you can put x2. So now hope you have understand the x-axis and y-axis.
Now one more things, on the x-axis to the right of the O is positive, to the left of, that means to the left is negative. So on the y-axis, up is the positive, down is negative. So to locate a point, we can write, suppose if we move here, suppose one place here and one place here. So if we move this as like this and this, so this point, these 2 points are meet at here. So this point is known as x and y. Okay. So in this chord, we have write the value x and y. So this is, we go x unit along the x-axis, means here to go x unit along the x-axis, and this much we have go y along to the y-axis. So now in a vertically direction, so for existence to the located this point, if we write a point as like the, suppose -3, if we have the point is like this -3 and 5, so -3 will go as like the point 1, point 2, point 3. So this is the -3, and here is the make the 5.1 2 3. It is a negative x, so no, we will make the positive y. So here we will make the 1 2 3 4 5. So this much and this much and this point are intersect. So this point is known as -3 and 5. So we group 3 unit of the horizontal in the negative direction along the x-axis, and then 5 units up parallel to the y-axis. So several points are located. You can see here the point -3 and the 5 are the point. Now we know the points dividing a given line inter, that means internally in a given ratio. Now we have learned a point. First of all, I erase it. Oh yes. See this. Now we know the point. We know the point dividing a given line internally. In a given ratio. Okay. So suppose we have a point. This is a line, and we can name it like the A and B. And if we have a point, here is a point P, and this much is 2 and this much is 3. So now we can show if a point P lies on a line AB, so somewhere in point, that means the between A and B, then we say that the P divide, that means this P is divide AB internally. That means this P can divide it in two sections. It's like the this much is a one section and this much is the other section. So this P divides internally line AB. So we can say the ratio, we can write a ratio like the, here is a AP, ratio PB is this much ratio and this much. So here value are given that, so we can write AP ratio PB. If AB, you can see, if total length of AB means from here to here, AB, this AB means this and this. From here to here are 5 centimeter, and this much is from here to here is 2 centimeter, and now here to till here 3 centimeter. In the ratio we can say this ratio will equal to 2 ratio 3. So the point P have divide the internally line AB in 2 ratio 3.
Now next we know, next we can know, okay, कि जो कोऑर्डिनेट में डिवीजन या सेक्शन फार्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले वी कैन राइट टू फाइंड टू फाइंड कोऑर्डिनेट of the point which divides inter internally the line joining joining two given points. In a given ratio. नाउ स्टार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें पता करना है कि पहले से कोई पॉइंट दी हुई है, टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स इंटरनली द लाइन ज्वाइनिंग टू गिवन पॉइंट्स इन अ गिवन रेशियो। सपोज हम एक डायग्राम बनाते हैं। This is our y-axis and this is x-axis, and here I can write one line, and this is a point, suppose one, and here I can make another point, like this is point B. And now if we make this, so this point is known as A and this point is known as B, and now the point B have known as like the x2 y2 point, and point A have x1 comma y1. If here is a point P and this point, now if we draw a line like this, now here if we draw point from this section, and if we draw from the here one line like this, so this point will we can indicate T and this point we can indicate K. Now here will the point like the L, M, and this will N. Now as we know that this is a x-axis, and now we can know this is y-axis, and here is a origin, को origin कहते हैं। अब हमें फाइंड करना है कि जो पॉइंट ए और बी का एक पॉइंट पी है, उस पॉइंट पे यानी जो रेशियो बनेगा वो क्या होगा। सो सपोज दिस पॉइंट पी हैव द एक्स एंड वाई। नाउ लेट you can see here, let A x1 y1 point and B x2 y2 point be the two given points, and P a point on AB, and this P a point on AB which divide it in the given ratio. Suppose 8P is divided line AB in a given ratio. The ratio, suppose the ratio is M1 ratio M2. Suppose this is the two ratio M1 and M2. Means if we this point can cut the line as like line AB will divided in two ratio as like this much, so and this much. So and it is required to find the coordinate of the P. So we can suppose there are the point P have the x and y. So draw the perpendicular line as like the AL like this, and the PM like this, and BN like this.
And also we can draw a line AK from A to K, like point from here to here. And the next is PT, and this line will is like this line, point P. And now PT and BN respectively. We have drawn as like this line. So then for the similar rectangular APK, that means we can say a triangle APK means this is a triangle. You can say this is a triangle. This match a triangle. So in a triangle APK means triangle APK and triangle PBT. So we have AP upon PB is equal to AK upon PT, and this is also equal to KT, that means KP upon TB. These are the equal. Now we can say the ratio as like the ratio AP and PB. AP ratio PB is equal to M1 ratio M2, because we can write AK is equal to LM is equal to OM minus OL, यानी OM माइनस OL की जो डिस्टेंस है. अब सपोज इनके हम लोग डिस्टेंस को लिख लें X और OL हमारा जो होगा वो हो जाएगा माइनस X1, मीन्स OM minus OL is equal to X minus X1. Now we can write PT is equal to MN is equal to ON minus OM, and this is equal to X2 minus X1. And here we can write KP is equal to MP minus MK, and this is equal to MP minus LA. And now we can write this is on the y-axis, so y minus y1. And now again we compare it like the TB is equal to NB minus NT, and this is equal to NB minus MP. And if we put the value, NB will the y2 minus MP will y. Now we can say that if we write in the ratio here M1 upon M2, so now if we put the M1 value, so M1 value is X minus X1 upon, and M2 value will X2 minus X, and this is equal to also Y minus Y1 upon Y2 minus Y. Now we can write M1 upon M2. That's if we cross multiply, and that means if we put the only one value like the X minus X1 or X2 minus X1, like this, we can take X minus X1 upon X2 minus X. And if we cross multiply like this to here and this to here, so we can also write it like, or M1 X2 minus M1 X,
is equal to m2x, means we will multiply this m2 to here. So m2x minus m2x1. Now, if we similarly write like in the form of y, but here we can take the common, and we have find out the value of only x. So here is a x and here is a x. We can write this 2x in the right here. So now we write here minus m1 and minus m2. Now we can say it like this. तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ये जो हमारे पास है ये पूरा सेक्शन, इसको हम और इस सेक्शन को, इसको इस साइड से इधर ट्रांसपोज कर देते हैं और इस सेक्शंस को इधर भी ट्रांसपोज कर सकते हैं। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं लाइक m1, ये इस साइड जाएगा तो पॉजिटिव जाएगा, m1x प्लस m2x इक्वल टू, और ये माइनस सेक्शन इस साइड आएगा तो अगेन बन जाएगा m1x2 प्लस I'm sorry, and here we can write m2x1, and if we take the x common, now we can write, if we take that common, so here we can write m1 plus m2, and now this is equal to here m1 x2 plus m2 x1. Now if we divide this total will here, so it will become x is equal to m1 x2 plus m2x and upon m1 plus m2. So according to this we can find out the value of x. So similarly we can write सेम कॉन्सेप्ट से हम लोग y को भी लिख सकते हैं m1 y2 प्लस m2 y अपॉन m1 प्लस m2। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले से अब हम लोग p और x के पॉइंट को फाइंड कर लिए। x का पॉइंट हमारा अगर हम केयरफुली देखें यहाँ पे, तो यही हमें x का पॉइंट है, यानी p के पॉइंट x और y के फॉर्म में मिले। और तो x के वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो p के पॉइंट पे x इक्वल टू हमारा m1 m2 के रेशियो के फॉर्म में फाइंड हो जाएगा। तो ये चीज़ें अब आपको वहाँ पे डिफाइन नहीं करनी है, बस डायरेक्टली आप ये याद कर सकते हैं, ताकि एग्ज़ाम में, खास करके स्पेशली बोर्ड एग्ज़ाम में, आपको बस ये याद रखने हैं। अगर आप ये याद रखते हैं तो आपको फार्मूला डायरेक्टली याद रहेगा और क्वेश्चन में इसको पुट करके आप आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो ये दोनों हमें फार्मूला मिल गए एक्स और वाई के। इसको अभी अगर हम थोड़ा सा ऊपर कर दें, तो इस चीज़ को हटा देते हैं तो हमारे पास फार्मूला मिल जाएगा x1 और x और y का हमें फार्मूला, तो यहाँ क्या है, ये हो जाएगा। तो क्लियरली हमें फार्मूला मिल गया एक्स और वाई का। हमें यही फार्मूला फाइंड करना था, तो अब इस फार्मूले पे हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और अगर हम लोग एक चीज़ और देखें, अगर हमें जो फार्मूला मिला है, हमारे पास जो फार्मूला है x इज इक्वल टू m1
x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। इस फॉर्मूले में अगर हम लोग m1 m2 यानी m1 की वैल्यू 1 पुट कर दें और m2 की भी वैल्यू 1 पुट कर दें, यानी दोनों का रेशियो 1 हो जाए, तो कोऑर्डिनेट का मिड पॉइंट हमें मिलेगा। तो मिड पॉइंट हमें मिल जाएगा। मिड पॉइंट हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा मिड पॉइंट। तो देखिए, यहाँ से हम 1 पुट करेंगे तो x2 हो जाएगा और यहाँ से m2 पुट करेंगे तो ओनली x1 बचेगा। यानी ऐसे 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 अपॉन 1 प्लस 1। तो ये क्या बन जाएगा? अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं x2 प्लस x1 अपॉन 2। और अब दोनों पॉजिटिव वैल्यू है तो हम लोग इसको और ऐसे भी लिख सकते हैं मिड पॉइंट में, x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो मिड पॉइंट फाइंड करने का फॉर्मूला ये हो जाएगा। अगर हम इसे y के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो y के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो मिड पॉइंट हमें मिल जाएगा y लाइक दिस, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये हमारा y का मिड पॉइंट मिल जाएगा। इस फार्मूले की हेल्प से, मिड पॉइंट और सेक्शन फार्मूला की हेल्प से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और इनसे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे सपोज हमारे पास क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिडल पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 5, -1 and 1, 4। ठीक। तो इसका हमें मिड पॉइंट निकालना है कि हमारे पास पॉइंट है। तो अब चलिए हम लोग ऐसे लिख लेंगे, कोऑर्डिनेट में मिडल पॉइंट, यानी मिड पॉइंट हमारा अगर फाइंड करना है तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला। अब हम लोग सपोज करो जैसे यहाँ पे हमारा है 5 - 1, यानी ये 2 पॉइंट है और दूसरा पॉइंट है 1 - 4, सॉरी 1 और 4। तो ये पॉइंट हमारा हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1। तो हम लिख सकते हैं x2 पॉइंट और इसको y2। तो मिड पॉइंट फार्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग लिख सकते हैं, अगर x का मिड पॉइंट फाइंड करना है तो x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो x का मिड पॉइंट हमें मिलेगा 5 + 1 अपॉन 2। तो आंसर क्या आएगा? 6 अपॉन 2 यानी 3। अब हमें y का मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो y का मिड पॉइंट फाइंड करना है तो हमारे पास फार्मूला हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। वैल्यू पुट करते हैं। y1 की वैल्यू है -1, वी कैन राइट हेयर -1, प्लस y2 की वैल्यू है 4, वी कैन राइट हेयर +4 अपॉन 2। इन दोनों को ऐड करें, -4 -1 + 4, so this will become is like -1 + 4 upon 2, and this is -1 + 4 is +3 अपॉन 2। अब 3 अपॉन 2 आ गया। तो अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, जो 3 अपॉन 2 है उसको अब हम डिवाइड करते हैं। तो हमें डिवाइड करने पे क्या मिलेगा? हमें मिलेगा
1.5, यानी ये डेसिमल में आएगा, या फिर इसको हम लोग ऐसे एजिट लिख सकते हैं, इसका मिड पॉइंट। और इसी के वैल्यू अगर हम लोग, जैसे ये 4 है, यहाँ पे एग्जाम में अगर 9 कर दें तो y2 हमारा 9 हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे हम लोग 9 लिख देंगे। तो फिर 4 -1 और यहाँ पे हो जाएगा +9। तो +9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 8.2, और आंसर क्या आ जाएगा 4। तो अब ये हमारा अगर 9 हो गया, इसकी वैल्यू कर देते हैं, और यहाँ वैल्यू क्या पुट कर देते हैं 9। यहाँ पे 9 पुट कर देंगे तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ये वाला 4। और एक्स का, हमारा एक्स एक्सिस तो दोनों का पॉइंट सेम है तो 3। तो अब हमें मिड पॉइंट क्या मिला, मिड पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, मिड पॉइंट वैल्यू इज इक्वल टू, ये पहले 3 भी पॉजिटिव है, फिर 4 की वैल्यू वाई है, यानी वाई की वैल्यू 4। तो हमें पॉइंट मिल जाएगा, मिड पॉइंट 3, 4, ये है हमारा मिड पॉइंट। होप कि आपको फार्मूला समझ में आया होगा, और आप इसको अच्छे से अंडरस्टूड किए होंगे। नेक्स्ट हम लोग अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो अब हमारे पास इसको 2 पॉइंट और बचते हैं, जैसे इसको कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्जन ऑफ द प्रॉब्लम, जैसे कोई प्रॉब्लम कन्वर्ज होता है, या के आ गया, एक्स वाई की प्लेस पे वैल्यू कुछ चेंज हो गई, तो इसमें क्या होगा, इफ द वैल्यू ऑफ के कम्स आउट टू बी नेगेटिव, इट शुड बी इनफर्ड दैट द डिवीजन इज एक्सटर्नल। तो इसका मतलब है कि डिवीजन एक्सटर्नल हुआ है। और अगर हमारा रूल to find the ratio when the coordinate of the point of division are given, जब डिवीजन दिया हो, जैसे हमारे पास कोई एक, लेट द रिक्वायर्ड रेशियो हम लोग ऐसे एज्यूम कर लेंगे, लेट द रिक्वायर्ड रेशियो k/1। तो अब हम लोग ऐसे कैसे एज्यूम कर लेते हैं, ऐसे जैसे कोई रेशियो नहीं दिया है तो हम लोग ऐसे एज्यूम कर लेंगे, लेट लेट k/1 ऐसे एज्यूम कर लेंगे। फिर फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, अब जो उसका कोऑर्डिनेट का पॉइंट होगा, जैसे हमारे पास पॉइंट है जैसे एक्स और वाई, और एक और पॉइंट है जो भी, मान लो सपोज x1 y1, ये दोनों पॉइंट है, इनको फाइंड आउट करना है इन द गिवन रेशियो। फिर इक्वल हम लोग बाइसेक्टर करके, या कोऑर्डिनेट को दोनों साइड का इक्वल करके, जैसे m1 m2 का रेशियो इक्वल करके उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जैसे से हमारे पास कोई ट्रायंगल आ गया, तो उसमें भी हम लोग इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉयड ऑफ अ ट्रायंगल हुज वर्टिकल आर गिवन, जिसके वर्टिकल गिवन दैट है। तो ट्रायंगल आ जाएगा, तो ट्रायंगल में हम लोग कौन सा फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, ट्रायंगल के लिए हमें सेंट्रॉयड फाइंड करना है या एक मिड पॉइंट फाइंड करना है ट्रायंगल का। तो उसमें हम लोग ऐसे लिखेंगे, x1 + x2 + x3 अपॉन 3, और दूसरा y का y1 + y2 + y3 अपॉन 3, ये हमारा y का मिड पॉइंट होगा। और ट्रायंगल हम लोग, सपोज हमने एक ट्रायंगल बनाया ऐसे ए, का नाम हमने ऐसे एक ट्रायंगल बना लिया, और यहाँ पे हमने इसका नाम लग ए लिखा, और इसका बी, यहाँ पे सी, और एक हमने ऐसे एक मिड पॉइंट ले लिया यहाँ पे, वो डी लिखा। अब ए से डी को हमने मिला दिया। सपोज इन सब का एक सेंटर, यानी इधर से कट करने पे, यहाँ पे सपोज करिए जी एक ऐसा पॉइंट है जो इसका सेक्टर है, और ये 2, और इधर 2 में इस सेक्शंस को, और इधर 1 में ये डिवाइड है। तो अब सबका, अब इस पे जो पॉइंट हमारा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए पे पॉइंट है, ये है x1 y1, और बी पे जो पॉइंट हमारा है वो है x2 y2, और सी पे जो पॉइंट है वो है x3 y3। अब हमें फार्मूला इनका मिड पॉइंट निकालना है, अगर ट्रायंगल, यानी 3 कोऑर्डिनेट हमारे 3 पॉइंट दिए हुए हैं, और ट्रायंगल का हमें सेंटर, यानी कि सेंट्रॉइड फाइंड करना है, इसका कहाँ पे सेंटर, जैसे यहाँ पे सपोज इसका सेंटर हो रहा है, तो इस फार्मूला के हिसाब से हम लोग इसका मिड पॉइंट या सेंटर पॉइंट फाइंड कर पाएंगे। कोऑर्डिनेट ऑफ अ ट्रायंगल, अब जिसमें टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल्स वेयर
द वर्टिसेस आर गिवन, ये ध्यान रखना है कि जिसकी वर्टिसेस गिवन होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास होगा अब स्लोप और द टेंजेंट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। अब स्लोप और टेंजेंट हमारा क्या होता है? तो स्लोप यानी कि किसी भी अब स्लोप हमें समझना है क्या? स्लोप, स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो सपोज हमारे पास यहाँ पे एक ऐसे लाइन वाई एक्सिस है और यहाँ पे एक एक्स एक्सिस है, और इस पे ये एक स्ट्रेट लाइन ऐसे पास हो रही है। तो इनके बिटवीन में यहाँ पे एक स्लोप आ रहा है, यानी ये एंगल थीटा आ रहा है। इसी स्लोप को हम लोग एंगल थीटा से या फिर स्लोप से इंडिकेट करते हैं। तो ये जो स्लोप होता है वो लेटर एम से हम लोग इंडिकेट करते हैं। अब लेटर एम से इंडिकेट करेंगे इस स्लोप को, तो एम इक्वल टू लोग ये लिख सकते हैं, एम की वैल्यू जो होती है वो tan थीटा के इक्वल होती है। तो स्लोप हमारा ये भी हो जाता है एम इक्वल टू tan थीटा। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारा होगी वाई एक्सिस और ये हो गया एक्स एक्सिस, और यहाँ पे एक लाइन जा रही है ए एंड पी। ए एंड पी ने एक्स एक्सिस पे इस साइड इधर एक एंगल बनाया है। तो ये कितना स्लोप हुआ? थीटा डिग्री। अब थीटा डिग्री स्लोप हुआ, तो स्लोप को हम लोग एम से इंडिकेट करते हैं। तो एम इक्वल टू जो थीटा की वैल्यू होगी टैन थीटा के इक्वल, तो एम इक्वल टू टैन थीटा हम लोग लिख सकते हैं। अब इसमें दूसरा हमारे पास जो होगा, अगर हमारे पास कोई स्लोप हो और उसमें कोई लाइन ज्वाइन हो टू पॉइंट्स पे, तो उसमें हमारे हमको एम इक्वल टू मिलेगा, एम इक्वल टू हो जाएगा ऐसे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये हमें तब फॉर्मूला यूज करना है जब हमें x1 y1 और x2 y2 की वैल्यू गिवन हो, या फिर दोनों ही हमारे पास पॉइंट अवेलेबल, यानी कि स्लोप ऑन अ लाइन ज्वाइन द टू पॉइंट्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारे पास थीटा डिग्री था। अब इसमें इस ये दो पॉइंट ज्वाइन हो रहे हैं, सपोज यहाँ पे एक पॉइंट ऐसे ज्वाइन हो गया और यहाँ पे भी एक पॉइंट ऐसे ज्वाइन हो गया। ठीक है, अब ये जो P, इसका नाम हम लोग लिख लेते हैं सपोज A, और इसका नाम लिख लेते हैं B, और P को यहाँ लिख देते हैं। तो अब हमारे पास जो ज्वाइन हुआ, अब इसमें देखिए यहाँ पे एक थीटा बनेगा ऐसे, ये भी एंगल बनेगा, स्लोप हुआ, ये थीटा है। इस थीटा के अकॉर्डिंग अब हमें पता करना है, जैसे यहाँ पे y यानी b की वैल्यू, अगर हम लोग b पॉइंट पे, यहाँ पे जो हमारा पॉइंट है इसका पॉइंट अगर x2 y2 है, और a पर यानी यहाँ पे जो a है हमारा, इस पे जो पॉइंट है x1 y1, ये दो पॉइंट है। तो थीटा इसका जो हो जाएगा वो इसका रेशियो, यानी यहाँ से जो हमारा है y2 माइनस y1, और ये जो है x2 माइनस x1, इन दोनों के रेशियो से ये हमें मिलेगा m की वैल्यू। ठीक है, यानी tan थीटा की वैल्यू अगर हम लोग पुट करेंगे तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 के रेशियो। This is also known as the difference of the coordinate and difference of the FCS. अब दो पॉइंट हमें समझना है कि अगर हमारे पास कोई लाइन जा रही है, पास हो रही है, तो उसमें से अगर कोई पैरेलल हो रही है और परपेंडिकुलर हो रही है तो क्या समझें? लेटर देयर बी अ लाइन ए बी एंड सी डी विच मेक द एंगल थीटा एंड रिस्पेक्टली अल्फा, यानी कि दो लाइन अब हमारे पास हैं, एक्सिस पे पास हो रही हैं। सपोज जैसे ये हमारा वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे एक लाइन ऐसे गई, ऐसे पास हो गई, और इसी के एक पैरेलल ऐसे पास हो गई। तो यहाँ पे एक जो थीटा बना, वो अगर इस थीटा के, यानी यहाँ पे जो एंगल बन रहा है जैसे मान लीजिए अल्फा, ये दोनों थीटा और अल्फा की वैल्यू अगर सेम हो जाए, यानी कि थीटा इज इक्वल टू अल्फा,
या ये कहें कि ये थीटा है तो ये भी थीटा ही है, यानी दोनों की वैल्यू 5 है, तो 5 डिग्री, जैसे सपोज इसकी 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री होगा। अगर एक एक्सिस पे दो लाइन सेम एंगल बनाएंगी, सेम डिग्री का, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो लाइन है, जैसे ये लाइन ए बी है, और ये दूसरी लाइन जो हमारी सी और डी है, ये लाइन ए बी और सी डी आपस में पैरेलल हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये डैश मान लीजिए, ये वाई डैश। तो एक्स एक्सिस पे दो लाइन ए बी आपस में पैरेलल हो गई व्हेन, जब हमारे पास थीटा की वैल्यू सेम हुआ। जब थीटा की वैल्यू सेम हुआ तो इसका मतलब tan थीटा, लोग लिख सकते हैं यहाँ पे tan थीटा या tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा। अब tan थीटा या tan अल्फा, मान लो यहाँ पे इसकी वैल्यू tan थीटा इक्वल टू होता है m, तो ये m1 इक्वल टू m2। जब m1 और m2 की वैल्यू सेम हो जाएगी तो उसको हम लोग कहेंगे कि दोनों लाइन पैरेलल है। और इसी के अगेंस्ट अगर m1 को m2 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी m1 इंटू m2, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आंसर -1 आए, तो हम लोग कहेंगे कि लाइन परपेंडिकुलर है। अब लाइन कैसी बनेगी? परपेंडिकुलर बनेगी। तो परपेंडिकुलर के लिए क्या फार्मूला हमारे पास होगा? यानी अब हमारे पास जो फार्मूला होगा वो होगा m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। और डायग्राम, जैसे ये हमारा वाई एक्सिस एक्स एक्सिस है, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे सपोज एक लाइन ऐसे गई, और एक लाइन हमारी जो है इस पे परपेंडिकुलर होना चाहिए, यानी कि जो एंगल है वो यहाँ पर सपोज कुछ ऐसे बन गया, यानी ये जो एंगल था वो 90 डिग्री का बन गया। इस यहाँ पे जो एक लाइन जा रही थी ऐसे हम लोग देखें, तो अभी हम लोग देखें तो ये लाइन पैरेलल थी, यानी ये एंगल इस पे ऐसा जंप किया, इधर गया, यानी कि वो 6 एग्जैक्ट 90 डिग्री का जब बना दे उस पर एक एंगल, तो वो हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर लाइन। यानी अगर ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर है, यानी सपोज अगर कोई भी लाइन इस पे अगर परपेंडिकुलर है तो ये एंगल 90 होगा, इधर से भी 90 होगा। उसी तरह से जो ये एंगल था, अब ये ऐसे ऐसी ट्रेवल करते हुए गई कि यहाँ पे एंगल 90 डिग्री बन गया। तो परपेंडिकुलर के लिए फार्मूला हमारे पास, बेसिकली आपको लाइन नहीं ड्रॉ करनी है, आपको ये याद रखना है कि परपेंडिकुलर का जो फार्मूला होगा, दो लाइन है तो एक हो जाएगा m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। जब भी m1 और m2 को मल्टीप्लाई करने पे आंसर -1 आए, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो दो लाइन परपेंडिकुलर है। अब यहाँ तक के फार्मूले हम लोग समझ चुके हैं, अब बचेगा सिर्फ हमारा न्यूमेरिकल सेक्शन। तो न्यूमेरिकल सेक्शन को एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करते जाएंगे, आप सीखते जाइए और पढ़ते जाइए, उसको अच्छे से समझिए ताकि एग्जाम में आप कर सकें। बोर्ड एग्जाम आपका काफ़ी नियर है। शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो मेरे पास क्वेश्चन है, बुक हमारे पास है, जो बुक है कौन सी, ICSE की मैथमेटिक्स है, ओपी मल्होत्रा की, एस चांद की बुक है। तो इसमें से एक एक्सरसाइज हम क्वेश्चन उसमें से लेंगे और सॉल्व करेंगे। मेरे पास जो एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज 11A। अब 11A में फर्स्ट क्वेश्चन हमें है, फाइंड आउट द मिड पॉइंट ऑफ द ज्वाइनिंग लाइन। अब हमारे पास क्वेश्चन दे दिया फाइंड आउट द मिड पॉइंट, स्पेशली हमें क्या फाइंड करना है? मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो चलिए हम मिड पॉइंट फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करना है? मिड पॉइंट। मिड पॉइंट हमें फाइंड करना है। अब ये जो मिड पॉइंट है कब बनेगी? जब लाइन ज्वाइन होती है, यानी कोई लाइन ज्वाइन होती है, लाइन ज्वाइनिंग, जो लाइन ज्वाइनिंग है उसका दो पॉइंट होना चाहिए। तो क्वेश्चन में ए में जो पॉइंट हमारे पास जो दिया है वो दिया है 5 8, कॉमा दूसरा पॉइंट है 9 11। मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सपोज 5 8 ये हमारा पॉइंट x1 है और दिस इज पॉइंट y1, और दूसरा पॉइंट हमें जो मिला 9 11, सपोज दिस पॉइंट इज x2 एंड दिस पॉइंट इज y2। तो मिड पॉइंट अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट फार्मूला x इज इक्वल टू, दैट मीन्स x1 प्लस
x2/2। इसका मिड पॉइंट जो हमें मिल रहा है x पे, वो हो रहा है, अब हमारे पास वैल्यू कितनी है x1 की वैल्यू है 5 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है 9/2। टोटल कितना हुआ 5 + 9 14/2, 2 7 जा 14, आंसर 7। एक हमें मिड पॉइंट मिल गया। और दूसरा मिड पॉइंट हम लोग फाइंड आउट करेंगे y2 + y1, या y1/y2 भी आप लिख सकते हैं /2। दूसरा मिड पॉइंट होगा, तो y2 की वैल्यू हमारे पास है 11 प्लस y1 की वैल्यू है 8/2। टोटल वैल्यू हो जाएगी कितनी 19/2। अब 19/2 को डिवाइड करेंगे तो हमें जो मिड पॉइंट मिलेगा एक बार, 19/2 है, हम लोग लिख सकते हैं 9.5। दूसरा हमारे पास जो मिड पॉइंट का आंसर मिला वो मिला 7,9.5। अब इस 9.5 को आप एच भी छोड़ सकते हैं 19/2 भी, डेसिमल में लिखने की कोई खास नीड नहीं है। आप 19/2 पार्ट में भी यानी रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे के भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, अब उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरा ये बताया हुआ समझ में आ रहा है तो आप हमें सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।